Hello friends, welcome back to our series on diabetes and low carb. I am your host, Dr. Jasmeet, a certified low carb advisor. Today's topic of discussion is obesity. So we decided this obesity is not out is a part of our series on diabetes and diabetes and low carb, but we have decided to take this cover this obesity part in more than one episodes because we want to keep our videos short and also to cover the different aspects of obesity. So obesity, the prevalence of obesity has skyrocketed since last decades. And if we look at the world obesity map, it shows that more than 650 million people are now obese worldwide. Now, how to end this global epidemic? The topmost advice which is given by the leading experts to end this global epidemic is just to eat less and move more. So they just considered the human body as an engine and applied the first law of thermodynamics, which states that energy can neither be created nor be destroyed, just can be converted from one form to other. So is it that simple? So just by exercising more and eating less, can we get rid of this obesity? Then why it has reached global epidemic? So if you want to know more about obesity, to clear your doubts about obesity, what it is, how our metabolism is, that it tends our body to store the energy that we are eating in the form of fat. All these questions will be answered by our experts who has joined us from D Life, which is a platform who help people to reverse their metabolic disorders like obesity, diabetes, hypertension, PCOS, and many other disorders that come along as a side effect of these disorders. So stay tuned with us for this episode. So I welcome Anup Singh and Arun Kumar from D Life. So welcome to your show. Thank you. Thank Good you. afternoon. So, Anup Singh, I think that we should start with our metabolism. So, what is it in our metabolism that the food that we eat, which we consider as an energy? I think in one of our previous topic we have mentioned about the metabolism, what it is. The two major sources of energy are carbohydrates and fat, which are used as energy by our body to perform the various metabolic reactions in our body. And protein, which we consider just as a building block because we are made of protein. The protein that we eat is commonly used to repair the tissues for the muscles and various other things. But it is only used as an energy fuel only in the period of starvation. So what is it in our human metabolism that we store the energy as a fat? Is it really a problematic or it is some protection given by the nature to us? Jasmeet, I think we have to keep hammering on certain words that we have been using in this English session में हम कुछ एक word बहुत repeatedly use कर रहे हैं, ठीक है? तो वो hammer इसलिए करना है क्योंकि जो दर्शक है ना, वो जब तक आप बार बार एक ही चीज को हैमर नहीं करो तो कोई भी नई चीज उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. तो नाउ आई विल स्टार्ट विद सेम ओल्ड फ्रेज, एनर्जी टॉक्सिसिटी. ठीक है, एनर्जी टॉक्सिसिटी का मतलब वही है कि आप खा ज्यादा रहे हो, जरूरत से ज्यादा खा रहे हो. ठीक है, और दूसरा आता है, जहां तक ओबेसिटी की बात है, दूसरा आता है पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड, जो शशि ने शायद पहले एपिसोड में बोला था. पर्सनल फैट थ्रेशोल्ड सबका अलग अलग है. ठीक है, अब होता क्या है, जब आप ज्यादा खाते हो, ऑब्वियसली इट इज अ कार्ब लोडेड डाइट, हम यही अज्यूम कर रहे हैं बिकॉज 60% 70% कार्बोहाइड्रेट चलती है, उतना आप कंज्यूम नहीं करते हो. अब टेक्निकली आप बोलो, जो मैथ्स में डिफरेंशियल और इंटीग्रल इक्वेशन होते हैं ना, वो आते हैं प्ले में. You may be eating 300 grams per day or 100 grams per meal, but you're not spending that energy at the commensurate rate. 2 घंटे में अगर डाइजेशन है, मान लीजिए 100 से 400 किलो कैलोरी, तो यू आर नॉट बर्निंग 200 किलो कैलोरीज पर आवर. आप 60 कर रहे हो, मान लो ऐसे जैसे हम आप बात करें, 60-70 किलो कैलोरी जा रही है खाने के बाद, बाकी 140 हो जाएगी फैट में. It will be converted to fat whether you like it or you don't like it.
दूसरा तरीका है जो हम लोग आपस में जब भी फोरम पे भी बात करते हैं, खाने के बाद सीढ़ी चढ़ना चालू करो, नहीं होगा। दैट मीन्स यू कीप बर्निंग व्हाट यू आर जनरेटिंग। आप उसको साइकिल में फिर मत ले जाओ कि अभी खाया, पहले स्टोर करूंगा, फिर जाके एक्सरसाइज करूंगा, बर्न करूंगा। तो यस, फैट इज बैड। अंडरलाइंग जो अंडरलाइन करना है, ओबेसिटी इज बैड। ठीक है, और वो बैड का जो डेफिनेशन है वो कुछ भी हो सकती है। किसी को मान लीजिए सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया तो रात में खर्राटे मारते हैं, जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं शायद, ठीक है, वो सो नहीं पाते हैं। सो बेसिकली once fat cells are taking in fat at a good rate, it is fine। ठीक है, जो एक्सेस है, मान लीजिए मैं अंडरवेट हूँ, मैं फैट गेन कर रहा हूँ, तो इनिशियली इट मे बी फाइन टू बॉडी इज एक्सेप्टिंग। बट एक थ्रेशोल्ड के बाद जब बॉडी जो है, फैट सेल्स, बेसिकली फैट सेल जैसे अभी तो बोलते हैं ना, इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एंडोक्रिन सिस्टम। ठीक है, वो जब रेजिस्ट करना चालू करती है, ऐसा नहीं कि दरवाजा बंद होता है कहीं, वो रेजिस्ट करना जब चालू करती है, देन द प्रॉब्लम रियली स्टार्ट्स। और जो एक टर्म और रिपीट करेंगे, वो फास्टिंग इंसुलिन, वो कोई टेस्ट करता नहीं है। तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कैच द प्रॉब्लम्स एट द इनिशियल स्टेज ऑफ गेटिंग ओवरवेट। मैं ओबीस भी नहीं बोल रहा हूँ, ओवरवेट बोल रहा हूँ। ठीक है, ओबिसिटी उसके बाद आएगी। अब प्रॉब्लम क्या क्या है? प्रॉब्लम सारी है, आपकी डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, और इन्फ्लेमेशन मार्कर। अभी कोविड का टाइम है, तो आपने देखा होगा ना, सब IL-6 और CRP, ये सब दो बड़े पॉपुलर पैरामीटर हो गए। फैट सेल्स, साइटोकिन्स, जो स्टॉर्म बोलते हैं अभी, साइटोकिन स्टॉर्म इज अनदर वेरी फेमस फ्रेज नाउ। इट इज बिकॉज ऑफ फैट ओवरलोडिंग बॉडी। ओबेसिटी, ओबेसिटी से जो भी है वो साइटोकिन स्टॉर्म, उस पे आप IL-6 बोलो, CRP बोलो, सब बढ़ता है। एंड to highlight how problematic it is, 80% of COVID hospitalizations or deaths, 80% were all obese। ये CDC का डेटा है, अपना मतलब अपना डेटा भी नहीं है। 80% of people who landed up in hospital or finally died were all obese। So in short, yes, obesity is problematic। Now, what is the benchmark? Benchmark is, मेरे हिसाब से, your waist to height ratio, which you should target 0.5 max। ठीक है, आप वहां पे हो, आप कितना भी खाओ, if you are, yeah, as long as you are maintaining that ratio, आप कितना भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है जिस्ट। Great, thank you. So let me summarize what you said. कि आपका कहना है कि the excess energy जो हम कंज्यूम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट की फॉर्म में, when it is in excess, तो वो जो जाके हमारे फैट सेल्स हैं उसको स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर स्टोर हो जाती है। बेसिकली वो जो फैट है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टारवेशन, या कह सकते हैं कि व्हेन आप एक्सटर्नली कुछ फीड नहीं कर रहे हो, इसीलिए नेचुरली क्या है कि हमारी बॉडी उसको स्टोर करती है ताकि बाद में हम उसको यूटिलाइज कर सकें। एंड यू सेड कि हाँ, हमारा जो खाना है बहुत ज्यादा हो गया है, वी आर जस्ट ईटिंग आफ्टर एवरी 2 आवर्स, और जो फैट सेल्स ने जो एनर्जी स्टोर की है उसके पास हम उसको टाइम ही नहीं दे रहे हैं कि हम उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकें। Is it what you यस, want to say? That's why the fat cells क्या है, वो थोड़ी देर बाद, कुछ देर बाद ओवरफ्लो करना शुरू कर जाते हैं। When they start to overflow, then it becomes problematic. यस, And then the consequence of it starts like diabetes, hypertension, basically insulin, हमारी fasting insulin बढ़ना शुरू हो जाती है, and then the another problems come into picture. Okay. सो एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो जो मेन फंडामेंटल थ्योरी है जो लोग यूज करते हैं, लाइक कैलोरीज इन कैलोरीज आउट, लाइक यू मीन कि बैलेंस बिगड़ जाता है, हमारी जो कैलोरीज हम जितनी ले रहे हैं उतनी कैलोरीज हम बर्न नहीं कर रहे,
तो अगर ये इतना ही सिंपल है तो आजकल बहुत सारे जो डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो हमारा डाइट चार्ट ऐसे बनाते हैं कि हाँ आप इतने कैलोरीज ले लो, इतना एक्सरसाइज करो, देन यू विल लूज वेट. अगर इफ इट इज सो इजी, देन व्हाई इट हैज रीच्ड ग्लोबल एपिडेमिक? क्या ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी पे एप्लीकेबल है या इसमें कुछ मिसिंग पार्ट है? बिकॉज हमारा ह्यूमन मेटाबॉलिज्म जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, वी कांट कोरिलेट इट विद जस्ट द एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स which is always done under controlled conditions. तो हमारी बॉडी में इतनी कंट्रोल्ड कंडीशन नहीं है, यहाँ पे और चीजें भी आती है जैसे हार्मोन्स आते हैं, ठीक है. इट्स नॉट जस्ट द कैलोरीज, एनर्जी दैट वी आर कंज्यूमिंग. So could you please explain, Arun Kumar, ki why the calorie balance equation fails? Actually, this is the ye calorie in or calorie out. That is the concept is taken by most of the doctors worldwide. Actually, it is even patients understand कि अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो ज़्यादा एक्सरसाइज करूंगा तो वो बर्न हो जाएगा. But fact is not like that. First thing that all calories are not same. If you compare the calorie of a 1 bottle Coke and calorie of 2 eggs omelette, it's quite different. You know, तो ये तो पहला चीज वो है. दूसरी बात है कि हमारा जो हार्मोन सिस्टम है जिसमें मेनली जो लीडिंग है वो इंसुलिन है. Insulin is meant to store energy as a fat in the adipose tissue, particularly in the white adipose tissues. तो वो जब उसमें स्टोर करना शुरू करता है तो वो क्या होता है कि फैट सेल धीरे धीरे एक्सपैंड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफी. अब उसका एक लिमिट है. जब वो उस लिमिट को खत्म पार क्रॉस कर जाता है तो वो फिर नो मोर फैट कैन बी स्टोर्ड इन दैट टिश्यू. तो क्या करता है कि वो और भी फैट सेल बनाते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरप्लेजिया इन सर्टेन कंडीशन. तो इन दैट कंडीशन ये एनर्जी जो हम बोलते हैं कि एनर्जी ज्यादा हो गया, उसको बर्न नहीं किए, स्टोर हो गया, अल्टीमेटली क्या आता है, दिस ऑल लीड्स टू द ओबेसिटी. Means obesity means one thing I just want to clarify you. So BMI is have lot of flaw in the concept, but worldwide अभी भी BMI को लोग बहुत लोग रेफर करते हैं. तो अगर BMI के हिसाब से चलेंगे तो जब आपका BMI 25 से ऊपर जाता है, when you are become obese, तो उस समय ये फैट सेल जो है ना, they are refuse to further grow or further expand. तो वहां पे ये आता है. अब हमारा जो फैट सेल में जब आई कैलोरी एज ए फैट जमा हो गया, हमारे एनर्जी एज ए फैट जमा हो गया सेल के अंदर में, तो वहां पे क्या है कि हम एक्सरसाइज कितना भी करें, कितना भी एक्सरसाइज कर ले, लेकिन हमारा जो इनसाइड जो आ रहा है, सपोज आप कोक ले रहे हैं, राइट, कार्बोहाइड्रेट हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हैं, वो जो ग्लूकोज अब फर्दर वहां नहीं डिपोजिट, तो वहां कहाँ जाएगा? वो रहेगा ब्लड में. वो ब्लड के अंदर में रहेगा. दैट लीड्स टू द इंसुलिन रेसिस्टेंस. ब्रेन सिग्नल करेगा ज्यादा इंसुलिन बनाने के लिए, ज्यादा इंसुलिन बनेगा और हमारा वो फैट सेल अब ले नहीं रहा है, एनर्जी को अब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो दैट रिमेन्स इन द सीरम. और वो क्या होता है कि दैट लीड्स टू मेनी ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स. पहला तो सबसे पहला जो आप सब लोग जानते हैं, टाइप 2 डायबिटीज इज द फर्स्ट, देन हाइपरटेंशन, देन एथेरोस्क्लेरोसिस, इसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज आप कह सकते हैं लेमेन्स टर्म में. तो उसके बाद स्लीप एपनिया, जैसा अनु सिंह ने बताया, हाइपोक्सिया. बिकॉज जब आपका सेल्स अब फर्दर ग्रो नहीं कर रहा, फर्दर एक्सपैंड नहीं कर रहा, तो यू विल फाइंड दैट द ऑक्सीजन इज कमिंग लेस टू द सेल्स, टू माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज देयर इज अ फर्दर जो ब्लॉकेज है. जब वो सेल्स जब एक्सपैंड करता है तो वो ब्लड का सर्कुलेशन वो इफेक्ट करता है, उसके चलते ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचती नहीं. दैट क्रिएट्स अ हाइपोक्सिया. आप स्लीप एपनिया, आप रात में सोते सोते उठ जाते हैं, आपकी सांस फॉर दिस फ्यू सेकंड बंद हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आना शुरू होता है. तो दैट इज व्हाई कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट कॉन्सेप्ट इज फेल्ड. कि मैं सारे दिन में 2000 कैलोरी लूंगा और मैं 2000 कैलोरी बर्न कर दूंगा, नहीं होता. इस बीच में सारा जो ये आता है ना, ये आपके बॉडी सेल्स में जो फैट सेल्स हैं, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाता है. जसमीत. So basically, yes, I think that you want to say कि जो खाना हम खा रहे हैं, जो कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, the type of calories matter. It's not only calories. और जो कैलोरीज अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं या फैट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो हर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स
पे हमारी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है. सो इट्स लाइक एन इंफॉर्मेशन. जो फूड है वो हमारा इंफॉर्मेशन है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, और हमारी बॉडी उस इंफॉर्मेशन को देख के रिस्पॉन्ड करती है कि इस कैलोरीज को स्टोर करना है या बर्न करना है. तो द टाइप ऑफ कैलोरीज मैटर, कि अगर हाँ ये वाली कैलोरी है बॉडी में जाके स्टोर होगी या बर्न होगी. तो जैसे हमारा खाना, अगर हम हमारा इंडियन कल्चर है जो डिफरेंट रीजन्स में ऑलमोस्ट सेम है. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर हम देखें तो आई जस्ट कंसीडर, ओके नॉर्दर्न पार्ट में ले लेते हैं. तो हमारा जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कॉम्बिनेशन होता है. प्रोटीन तो हमारा आई थिंक 10% से 10 to 15% से ज्यादा कोई नहीं लेता. ठीक है. तो जो हमारा मेन खाना है वो कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम नॉर्मल मॉर्निंग का खाना लेते हैं, ठीक है, कोई अगर खा रहा है तो डोसा खा रहा है तो उसमें भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट है. पराठे खा रहे हैं तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट है. तो जैसे सपोज हमारा मेन जो कॉम्बिनेशन है, आजकल क्या हो गया कि पहले लोग एक कुछ टाइम समय आया था कि हाँ लोग फैट को बुरा समझते थे, लेकिन आजकल फिर इतना अवेयरनेस हो गया कि हाँ फैट इज नॉट दैट बैड. बट अब क्या है कि हाँ जब फैट को तो उन्होंने अच्छी तरह अडेप्ट कर लिया, बट कार्बोहाइड्रेट्स को उन्होंने नहीं छोड़ा है. Now they are taking it in combination. Most of the people, butter, ghee, they think that it is a healthy fat. No doubt, we also promote healthy fat on day life, and we also consider these all saturated fats as good fat. But that is a different condition because we adopt low carb, high fat diet, not high fat, high carb. But the normal food that we eat, the general public, is high carb, high fat. तो जब हम हाई कार्ब और हाई फैट का कॉम्बिनेशन फीड करते हैं बॉडी को, तो क्या होता है, बेसिकली जो हमारी बॉडी है वो क्या यूज करती है और इसमें से क्या स्टोर कर रही है, ऐसा क्या है. जब हम ये हाई फैट और हाई कार्ब हम लेते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारा कार्ब कंजम्पशन कम हो जाता है तो बॉडी टर्न टू फॉर एनर्जी, दे टर्न टू फैट. फैट से वो एनर्जी बनाना शुरू करता है. तो जो हम फैट लेते हैं, पर्टिकुलरली सैचुरेटेड फैट जो लेते हैं, उसको बॉडी वो टर्न करती है कीटोन्स में, और कीटोन्स को हम लोग एज ए एनर्जी यूज करते हैं. लेकिन जब आप हाई कार्ब लेते हैं तो ये बॉडी का अपना नेचर है कि फर्स्ट ही विल बर्न कार्ब, शुगर, ग्लूकोज. पहले वो कार्ब को बर्न करेगा, उसके बाद वो फैट को बर्न करेगा. तो उसमें क्या होता है कि हम जो अगर हाई फैट हाई कार्ब लेते हैं तो कार्ब तो बर्न होता है लेकिन फैट हमारे टिश्यूज में जमा हो जाता है, पर्टिकुलरली एडिपोज टिश्यूज एज वेल एज द लीवर. ये दो जगह जमा होता है, दैट टू एज ए ट्राइग्लिसराइड. जो फैट सेल्स में जमा होता है वो रिलीज करता है फ्री फैटी एसिड, जो लीवर में जाके फिर ट्राइग्लिसराइड बनता है. तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि ये ट्राइग्लिसराइड जब ब्लड में बढ़ने लगता है, एक टाइम आता है कि लीवर भी वो ट्राइग्लिसराइड को देना बंद कर देता है. तो वो क्या होता है कि लेकिन फैट सेल्स तो ट्राइग्लिसराइड निकाल रहा है, मतलब एफएफए निकाल रहा है, फ्री फैटी एसिड, और वो जाके लीवर में ट्राइग्लिसराइड बनता है और लीवर उसको क्या करता है, ब्लड में निकालना शुरू कर देता है. तो जब सीरम में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा तो वो कहाँ रहेगा, वो तो आर्टरी जो होगा सबसे क्रॉस करेगा ना. तो दैट इज काउजिंग द रीजन फॉर द प्लेक्स इन द आर्टरी, और वो हम जिसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस. जबकि वो कोरोनरी आर्टरी में होता है तो वी आर फेसिंग द कार्डियोवास्कुलर. तो इसीलिए अगर आप हाई फैट और हाई कार्ब लेते हैं तो दैट इज मोस्ट डेंजरस थिंग. इट इज मोर डेंजरस देन द हाई कार्ब डाइट. अगर हम हाई कार्ब और लो फैट लेते हैं तो ठीक है, वो भी डेंजरस है, अच्छा नहीं है. लेकिन हाई कार्ब एंड हाई फैट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिजास्टर्स कंडीशन है, वहां पे हम लोग पहुंच जाते हैं. इसलिए अगर हम हाई कार्ब लेते हैं तो हाई फैट को नहीं लेना चाहिए. बट वी प्रमोट कि नो, the carbs should be very limited, fat should be high, because we want our body to run on the fat. और जब आप फैट बर्न करेंगे तो आपके बॉडी में जो एक्सेसिव फैट जो एडिपोज टिश्यूज में है वो भी निकलेगा, वो भी बर्न होगा, साथ में जो आप फैट ले रहे हैं बाहर से वो भी होगा. तो कार्बोहाइड्रेट की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है जसमीत, am I clear? Yes. Would you like to add something, Anup Singh, to this? Yeah, calorie in, calorie out. मैं हमेशा बोलता हूँ, it is a very good topic for getting a PhD. ठीक है, आप इंसान को मेटाबॉलिक चेम्बर में बंद कर दो, and then you count for each and every calorie. वो सांस में कितनी जा रही है, बॉडी से heat loss क्या है. So it is very good for earning a PhD, but it is absolutely useless in practical world. अब मैं बताऊं क्यों. एक एग्जांपल, दो एग्जांपल. There was a study with, I think,
आलमंड्स, ठीक है, आलमंड्स खिलाया और उसको मेटाबॉलिक चेंबर में पूरा स्टडी किया. The conclusion was roughly 27 or 22%, exact figure, but it is 20, about 20% of the energy intake was out in the loop. ये शब्द बोल रहा हूं मैं, either it was excreted in stool or urine, whatever, but it was never assimilated by the body. ठीक है, तो सीको वाले पीएचडी अर्न कर लेंगे ये एनर्जी बैलेंस दिखा के, बट अ डाइटिशियन और अ डॉक्टर और एनीवन हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल वेट बेस्ड ऑन दिस, he or she will definitely fail, and they all fail. ठीक है, एक तो ये हो गया. दूसरा, eat less and move more, है ना, ये एक थियरी देते हैं, वो सीको वाले ही है, कैलोरी इन कैलोरी आउट वाले ही है, जो उनका ये दूसरा रहता है कि भाई ईट लेस मूव मोर. नाउ एक टाइम की लार्जेस्ट फेडरली फंडेड स्टडी ऑन टाइप 2 डायबिटिक्स, more than 5,000 was the sample size. Study was designed for 13 years. ठीक है, उसमें ये था कि आप खाओ, खाने के बाद एक्सरसाइज करो तो उससे ये फायदा होगा, वो फायदा होगा, कार्डियोवैस्कुलर, बेसिकली आई थिंक दे वर ट्राइंग टू फिगर आउट कि इनकी थियरी से डायबिटिक विल हैव लेस सीवीडी इवेंट्स और डेथ एज कंपेयर टू ईट मोर एंड मूव नॉट एट ऑल. Now, I think that was a study, वो काफी पुरानी है, look ahead protocol पे study based थी, which was nothing but basically American Diabetic Association की वो मैक्रो, ठीक है, कंट्रोल सबको 5,200 या 5,400 का फिगर है सैंपल साइज, टाइप 2 डायबिटिक्स, उनको 13 साल तक फॉलो करना था. The study was such a horrible failure that after I think 12 years they silently terminated it. Because eat less, move more, the number of CVD events, it had no impact. So मतलब एकदम secret they terminated the study. They wasted around $100 million. ठीक है, और किसी भी जर्नल ने most of these studies which promote this seco theory, calories in calories out, is always funded by some industries, the food industries. This was federally funded. मतलब इसमें कोई private institution या body नहीं, federal means government की funding, and they failed. Failure was so miserable कि वो एक साल पहले ही चुपचाप स्टडी बंद किया, टीम डिस्पर्स हुई, and no journal picked it up. खाली एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक छोटा सी आर्टिकल पब्लिश हुआ था, where they वो मतलब जो मेन फोकस था स्टडी का वो बात ही नहीं किया, बोला अरे somebody lost 2 kg weight, किसी का 5 किलो वजन कम चल रहा है. That was not the aim of the study. Aim of the study was CVD events and deaths. तो ये हो गया eat less move more का, ठीक है. अ फेलियर, कैलोरी इन कैलोरी आउट, आलमंड का मैंने कोट किया, फेलियर प्रैक्टिकली. अब जैसे अरुण सर कीटो पे है, ठीक है, नाउ a person on keto and who is taking coconut oil, suppose, या मैं लो कार्ब पे हूं, मैं कोकोनट ऑयल ले रहा हूं, the MCT component of that will never go through lymphatic system, will never get stored. ठीक है, you will anyhow convert to ketones and either use it or excrete it. तो इसमें कहाँ से आप कैलकुलेट करोगे कि टुडे आई हैड 2000 किलो कैलोरीज ऑफ मील, मैं एक साल तक यही मील चलाऊंगा, बट आउट ऑफ दैट 30% इज लेट्स से मैं 60 की जगह 30 बोल रहा हूँ, which is bypassing everything through portal vein, bypassing to liver, converting to ketones and gone out. So obviously वो अगर मैं करूंगा कि भाई मैं 2000 खा रहा हूं तो मैं गेन करूंगा, I will not gain weight. There are studies, लोग 5,000 किलो कैलोरी खा के the amount of weight which they had to gain, ठीक है, 5,000 किलो कैलोरी पे किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है, सैंथम या क्या नाम है, he gained only 11 kgs. Otherwise उसको मतलब it was I think 1/3 of what theoretically he should have gained. So as Arun sir said, not all calories are created equal as far as body's response to calorie is concerned. पेपर पे सब कैलोरी बराबर है, 9 किलो कैलोरी फैट से है,
4 कार्ब से है, 4 प्रोटीन से है, 7 दारू से, तो पेपर पे तो सब बराबर है ना? बट अल्टीमेटली हाउ इज द बॉडी डीलिंग विद इट, दैट नोबडी विल टेल। तो सिको इज वेरी गुड फॉर अर्निंग पीएचडी, हैज गॉट जीरो एप्लीकेबिलिटी इन रियल वर्ल्ड। ये मैं बार बार बोलता हूँ, ट्विटर पे भी बोलता हूँ, जितने आते हैं कभी छेकते हैं ना, तो मैं यही बोलता हूँ। Yes, you're right. Fat is not bad, but important है कि हाँ, जब आप फैट ले रहे हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करना ही करना है। Yes. The reason is आपको इंसुलिन कम करना है, तभी आपका फैट यूज होगा, अदरवाइज फैट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड। और जैसे अरुण कुमार जी ने कहा कि हाँ, जब आप हाई कार्ब और हाई फैट को कंबाइन करते हैं तो हमारी बॉडी का जो प्रेफर्ड फ्यूल है वो तो ग्लूकोज ही है। So body will immediately use that glucose and store that fat that you are eating with carbohydrates in your adipose tissue. और वो फैट हम कभी यूज नहीं करते हैं and we lead to obesity. So ये important है लोगों को जानना कि हाँ, we promote fat but that is with low carb. It's not high carb, high fat. Yeah. क्योंकि लोग क्या है कि बेसिकली जो चीज अच्छी है उसको तो अडाप्ट कर लेंगे, they never quit the other thing. That is the main issue. आपने ये बहुत सही बोला, क्योंकि शुरू में जब लो कार्ब की बात करते थे ना, तो इतना डिटेल नहीं देते थे। 2013-14 की बात है, किसी और फोरम पे तो बोलते थे आई हैव स्विच्ड टू लो कार्ब बट मेरा कम नहीं हो रहा है, मतलब एकदम कॉन्फिडेंटली। तो उनसे पूछा भाई क्या करते हो, बोला बस रोटी पे घी लगा दे रहा हूँ। मतलब घी लगा के यू आर कन्वर्टिंग अ हाई कार्ब लो फैट डाइट टू लो कार्ब हाई फैट डाइट। ये लॉजिक समझ में नहीं है। So this is first mistake, usual mistake which every person makes who is entering into low carb. तो सोचा बस Nowadays थोड़ा ना दाल में घी कोकोनट डाल दो। ऑयल बहुत फेमस हो गया, हर कोई कोकोनट ऑयल को ऐसे सिरप की तरह ले रहा है। Like you वो said कि दिक्कत हाँ, ये कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल फिर भी इट इज अ बिट सेफ। हाई कार्ब पे आप देखोगे जो कीटो डाइट की जो है ना, मैक्रो जो सेट करते हैं, उसमें एक डाइट है एमसीटी डाइट, एमसीटी कीटो, ठीक है? वहां पे थोड़ा हाई कार्ब चल जाता है। अगर कोई घी खा के बोलेगा कि मैं लो कार्ब पे हूं, इट विल नॉट। नहीं, अगर आप हाई फैट में जाते हैं तो कार्ब को कम करना ही पड़ेगा, तभी Yes. आपकी बॉडी का फैट को यूज करेगी, नहीं तो वो यूज ही नहीं कर पाएगी फैट को। सिंपल सा चीज है। Yes. So the summarize, fat is good, coconut oil is good, but with low carb. लो कार्ब। So the next question is हाँ, जैसे लोग जब फैट को लूज करते हैं, they don't realize कि वो फैट जाता कहाँ है। ठीक है, काफी लोगों को इतना इतना फैट होता है, तो वो फैट कहाँ जाता है? दे शुड नो कि वो फैट किस लिए पहले डिपॉजिट हुआ था, तो वो कहाँ यूज हो रहा है, क्या वो वेस्ट हो रहा है या कहाँ जा रहा है वो फैट। सो could you please explain? Actually जब आप when you burn your fat, means it is stored in the adipose tissue. When you are burning the fat from the adipose tissue, so it is first converted into energy. If when your body is starving, or you are doing fasting, or you are doing most of the exercise, what do we call the resistance exercise, heat and all. But in that time, fat is converting into energy, and there are two byproducts also, that is carbon dioxide and water. So both is excreted from the body, either from the urine or through exhalation or through sweating, etc. But basically, we use the fat as an energy. So fat is converted into energy. Of course, the process is very complex, big process. But simply I can say कि ये फैट जब आप बर्न करते हैं, जिसको बर्न करने का मतलब क्या है, जब हम उसको यूज करते हैं एज एनर्जी, तो वो एनर्जी जब हम यूज करते हैं तो वो हम फैट हमारा वहाँ बर्न होकर एनर्जी में यूज होता है, और बाकी जो बाई प्रोडक्ट है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो दोनों हम एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा एक और फायदा होता है, जब आप फैट बर्न करते हैं तो नॉर्मली जो फैट हमारा डिपॉजिट होता है वो व्हाइट एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता है, और हमारे जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है, एंड दे जनरेट लॉट ऑफ हीट। तो हम मैं एग्जांपल दूंगा, ठंड के दिनों में जब हमारी बॉडी सीवर करती है तो वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू उसमें हीट जनरेट करता है, because they have more mitochondria to generate the heat. White adipose tissues नहीं कर पाता।
या कुछ कुछ बीज एडिपोज टिश्यू जो होता है वो करता है। बट उस समय क्या होता है, जब हम फैट बर्न करते हैं तो व्हाइट एडिपोज टिश्यूज का नंबर कम होने लगता है और ब्राउन एडिपोज टिश्यूज का नंबर बढ़ने लगता है, और तो बॉडी आपका फिर स्लिम यानी ओबेसिटी आपकी कम होने लगती है। That is the way we can use the fat. When you are using fat, we are using as energy and byproduct में CO2 और water है उसके बाद। Okay. तो अनूप सिंह, जैसे हाँ अरुण कुमार ने कहा कि हाँ फैट है जो हमारी, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो फैट हमने स्टोर भी कर रखी है, दैट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया कि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स और फैट दोनों से एनर्जी, दे आर बोथ आर द फ्यूल सोर्सेस। तो जो स्टोर्ड फैट भी है वो भी हम या फास्टिंग के टाइम, और अगर हमारा हम लो कार्ब डाइट ले रहे हैं तो इन दैट केस आल्सो वी कैन यूज दैट स्टोर्ड फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन कि जैसे हाँ लो कार्ब और हाई फैट डाइट जब आप लेते हैं तभी ही वो आपका जो फैट है वो यूज हो सकता है, बट इन केस ऑफ जैसे अगर आप कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, इन दैट केस इट्स नॉट पॉसिबल टू यूज दैट स्टोर्ड फैट। इट इज बेसिकली इन शॉर्ट इंटरप्ले ऑफ इंसुलिन ग्लूकागॉन, ठीक है, उसका इंटरप्ले है। ये इंसुलिन एलिवेटेड है, फैट यूज नहीं होगा। जब तक इंसुलिन नीचे नहीं आएगा तब तक फैट विल नॉट बी मेटाबोलाइज्ड इन द सेंस दैट वी यूज इट एज एनर्जी। पाथवे उसका वही है, बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे है, थ्रू विच वी स्टार्ट यूजिंग फैट एज एनर्जी व्हेन देयर इज, जिसको आप बोल लो एनर्जी क्राइसिस बोल लो या एनर्जी शॉर्टफॉल है, जो भी है। या आप फास्टिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं फास्टिंग कर रहे हो तो बॉडी शट डाउन हो, आपका शुगर लेवल नीचे आया, इंसुलिन लेवल नीचे आया, देन फैट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग टू एनर्जी। तो अब लो कार्ब में क्या है, जैसा हम कई बार पिछले एपिसोड में भी बोल चुके हैं, लो कार्ब या कीटो डाइट प्राइमरी एम इज एड्रेसिंग हाइपर इंसुलिनेमिया, ठीक है, वो प्राइमरी एम है। बाकी तो लोगों को समझाने के लिए है कि भाई शुगर कम हो जाएगी, ये हो जाएगा, और प्राइमरी एम इज टू गेट दैट इंसुलिन लेवल डाउन। वो क्यों? वो इसीलिए कि जब इंसुलिन लेवल नीचे आएगा तभी फैट मेटाबोलाइज। एलिवेटेड इंसुलिन पे you will keep living on high carb diet, sorry, in मतलब primarily glucose। और इंसुलिन एलिवेटेड तभी चलता है जब आपकी you cannot handle basically the amount of carbohydrates that you are taking। वो हेल्दी है तो फैट होगा, फिर फैटी लिवर होगा, फिर सब जगह सांस फूलेगी, ये होगा। हम डायबिटिक्स जो है हम then we will find that finally एक ड्रग है, फिर दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, फाइनली इंसुलिन आया, एंड इट लाइफ इज हेल। ऐसा नहीं कि इंसुलिन आ गया तो इट इज सम मैजिक दैट हैज हैपेंड। इंसुलिन पे भी लोग जो है फिर अगली किडनी जाएगी आपकी, कुछ ना कुछ तो होगा। मोमेंट यू स्टार्ट डिस्टर्बिंग, जो जिसको क्या बोलते हैं, होम्योस्टेटिस बोलते हैं ना शायद टेक्निकली, आइडियल बॉडी की, डायबिटिक की। मोमेंट यू स्टार्ट डिस्टर्बिंग दैट, बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉब्लम्स। हो सकता है 1 साल में हो सकता है 10 साल में हो, लेकिन होगी जरूर। तो ये है लो कार्ब पे, इसीलिए द साइंस ऑफ लो कार्ब इज स्टार्ट यूजिंग फैट फॉर एनर्जी, बिकॉज़ फैट विल नॉट स्पाइक। डाइट ही है जो हमारी जो फैट है उसको अनलॉक कर सकती है। अगर हम हाई कार्ब हाई फैट में अगर आप कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, अगर आप हाई कार्ब लो फैट भी ले रहे हो, तो आपका जो इंसुलिन है वो एक एंटी कैटाबॉलिक हार्मोन है जो कि आपके फैट को तोड़ नहीं, मतलब ब्लॉक करके रखा हुआ है उसने। तो लो कार्ब हाई फैट, इवन कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड में आई थिंक देयर इज वन पॉडकास्ट वेयर इट इज एक्सप्लेन्ड। चलो मान लो आपने काफी जद्दोजहद करके आपने 5 किलो 10 किलो वजन कम कर लिया, ठीक है, वो भूखे रह के स्टार्व करके जो भी करके। नाउ दिस लाइफ इज नॉन सस्टेनेबल, ठीक है। आप 10 किलो कम करके फिर आप जब अपने आप को खुला छोड़ोगे, again you will that gain insulin will come back. But the problem with this cycle is when you are losing weight by cutting down calorie, you are also losing muscle mass, ठीक है। अब आप जब वेट आपका बढ़ेगा वापस, you will not gain muscle mass, you will again gain fat, because diet तो वही है ना। Essentially आप जब ये साइकिल पे चलोगे ना कि
पहले कम किया, फिर खुला छूट गए, बढ़ गया, फिर कम किया, अल्टीमेटली यू आर लूजिंग योर मसल मास, क्योंकि वो प्रोटीन वही 30 ग्राम लेते, 30-40 ग्राम लेते हैं. So that is why that is also dangerous from that point of view. जो calorie restricted diet. One more point I would like to add here that when you are doing fasting to lose the weight, और fasting 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, intermittent fasting हो, और साथ में आप जब fasting तोड़ते हैं तो high carb पे तोड़ते हैं, तो during the fasting period ना आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी को कम मिलता है, because you are not taking sufficient food, you are not taking any food. So in that condition, your body is starving for micronutrients also. Macronutrients बंद करने के साथ साथ micronutrients की कमी आती है, साथ साथ में electrolyte imbalance भी body को फेस करना पड़ता है. So these are the other things. But the basic thing is that why to go for fasting, and this is not sustainable. अगर आप लो कैलोरी डाइट पे चल रहे हैं, आप कैलोरी कम कर ले रहे हैं या डाइट कम कर रहे हैं, तो आपको हमेशा भूख लगी रहेगी, आपको स्टार्विंग हमेशा फील होगा. बस आपका जो हार्मोन इंसुलिन है वो अभी एलिवेटेड ही रहता है, इतना इजीली नहीं. रीजन है कि जब आपको भूख लगेगी, आपकी बॉडी वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो कॉर्टिसोल का भी रिलीज होना शुरू हो जाता है. बॉडी को फील होता है ना कि हमको चाहिए एनर्जी, तो बॉडी क्या करती है, कॉर्टिसोल रिलीज करती है, और वहां से फिर वो आपका ग्लूकोज निकलता है मसल से, फिर आपके लीवर से ग्लूकोज निकलता है, मसल मास यू आर लूजिंग. बट जब ये इसके साथ साथ में आपका लेकिन इंसुलिन लेवल कम नहीं होता, तो जब भी कॉर्टिसोल निकलेगा तो इंसुलिन लेवल बढ़ेगा. तो दैट इज द फंडा. इन दैट केस आपको लो कैलोरी डाइट पे आप सस्टेन नहीं कर सकते हैं. कोई आदमी कितना दिन तक भूखे रह के चल सकता है, तो इसलिए आपको लो कैलोरी डाइट फेलियर हो गया है, लोग नहीं कर पाते हैं. हमारा सबसे अच्छा इसलिए कि आप लो कार्ब डाइट पे जाइए, उसको आप अपना कैलोरी को कॉम्पनसेट करने के लिए हम प्रोटीन और फैट से प्रोटीन को कॉम्पनसेट करते हैं. सो बॉडी इज गेटिंग एनफ कैलोरी, so there is no problem, but we are reducing the carb. One more point that whenever eating carb, there is a spike trigger for the insulin secretion. बॉडी में जो भी कार्ब जाएगा तो वो इंसुलिन सिक्रेट करेगा, थोड़ा भी जाएगा. आप चीनी का एक दाना भी दोगे तो वो इंसुलिन थोड़ा ही होगा, लेकिन इंसुलिन ट्रिगर करेगा. तो दिस इज द रीजन व्हाई द लो कैलोरी डाइट इज फेल्ड, और वो काम नहीं करता. यस, क्योंकि लो कैलोरीज डाइट में प्रोटीन बहुत कम हो जाता है, और प्रोटीन इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको सेशिएट फील करवाता है, बिकॉज इट वाज लाइक कि प्रोटीन के साथ ग्रेलिन हार्मोन का डायरेक्ट रिलेशन है. अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो आपका ग्रेलिन रिलीज होगा जो कि आपको सेशिएटिंग फील करवाता है, सॉरी लेप्टिन जो आपको सेशिएट फील करवाता है, और ग्रेलिन कम हो जाता है. ग्रेलिन जो आपका हंगर हार्मोन है, तो सेशिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके लिए आपको प्रोटीन को टारगेट करना इंपॉर्टेंट होगा, और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट डिपेंड करते हैं कि हाँ आपका जो हेल्थ गोल है क्या गोल है, उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को सेट कर सकते हैं. This is that quite practical. You can do in everyday life. आप मॉर्निंग में 2-3 अंडे का ऑमलेट या अंडा खा लीजिए, या फिर आप 100 ग्राम आप पनीर या फिर 100 ग्राम आप ये चीज खा लीजिए. आप देखेंगे आपको 2-2:30 बजे 3 बजे दिन तक भूख नहीं लगेगी. बेसिकली एक्चुअली हाई कार्ब में क्या होता है कि वो कैलोरीज जब नोट करते हैं तो 1 एग लेते ही उनको लगता है कि हाँ इतनी कैलोरीज हो गई, इससे बेटर है कि हाँ 2-3-4 ब्रेड खा लो. वो तो उसमें तो क्या ब्रेड से तुरंत आपको भूख लगेगी ना, वो तुरंत बॉडी में जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो उसको यूज होता है, यूटिलाइज हो जाता है. लेकिन प्रोटीन जो है दैट इज रियली रिड्यूसिंग द ग्रेलिन secretion and increasing leptin. So you will not feel hungry even up to 4, 5, 6 hours. And that is a practical thing which you are experiencing every day. Yes, Anup Singh, would you like to add something? Anup Singh, or shall I move to the next question? I think. Yeah, Anup, can you hear us? Lost his connection. I think उनका audio lost. कट हो गया बीच में. Audio lost. Anup, can you hear us? Lost.
lost his audio. Okay. Yeah, next question, Jasmine. Okay, we can continue with the next. I think there is some internet connection problem with the mixing. Okay. Actually, basically, क्या होता है कि जो लोग excess fat ले रहे हैं, sorry, कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं, तो उनका ऐसा कहा जाता है कि उनका मेटाबॉलिज्म बीएमआर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता रहता है. सो क्या जो बीएमआर है जब वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता है, डस बीएमआर लो बीएमआर लीड्स टू वेट गेन? ऐसा कोई स्टडी है जो अगर आपका बीएमआर कम है तो आपका वेट गेन ज्यादा होगा? Study I'm not remembering right now, but it's obvious when your body metabolism rate is slow down, so you are not able to use your whatever you are eating, you are not able to use your calories. And if you are not using your calories, naturally your body mass will go up. वो फिर storage होता है, energy storage होता है as a fat in the adipose tissues. So in that condition, this is natural. I'm sorry, I cannot remember any. I think Anup will quote. Anup, can you hear us? Yeah. No, I okay. got it. We were discussing that कि basal metabolic rate कि अगर नहीं, हाँ हाँ, आप बेसल वो मेटाबॉलिक पुराने रेट बीएमआर के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हाँ उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और विद एज क्या हो रहा है कि उनका बीएमआर कम हो रहा है, दैट वो अपने ओवर वेट को एक्सेस वेट को बीएमआर के साथ कोरिलेट करते हैं. बेसिकली वो ये कहते हैं कि हाँ मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया इसलिए मेरा वेट गेन हो रहा है. क्या हमारा सिर्फ बीएमआर है जो डिसाइड करता है कि हमारा वेट गेन होगा या नहीं? इवन बीएमआर इज डिसाइडेड बाय डाइट. सॉरी, अगर मैं बोलूं इवन बीएमआर जो है ना वो डाइट डिपेंडेंट है. ठीक है, आपका हाई कार्ब विल हैव द लोएस्ट बीएमआर, सेम बॉडी, उससे ज्यादा बीएमआर होगा लो कार्ब वाले का, उससे ज्यादा होगा कीटो वाले. तो बेसिकली हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं बीएमआर को डिसाइड करने में. यस, इट्स नॉट ओनली कि हाँ आपका लाइफस्टाइल, मेन आर हार्मोन्स. या बेसिक वो है ना, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग ऑफ इंटरप्ले, नॉट जस्ट वन और टू बट इंटरप्ले ऑफ जो बोलते हैं ना क्रॉस टॉक जो है, इट इज एन इंटरप्ले ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऑल हार्मोन सिस्टम. वो लोग जो है उसको अपनी भाषा में दे ट्राई टू सिंप्लीफाई कि बीएमआर कम है इसलिए जो है मेरा वेट बढ़ रहा है. तो आप पूछो बीएमआर कम क्यों है, बोलेंगे मैं सेडेंटरी हूँ. अब आप बोलोगे जब आप सेडेंटरी हो तो इतना खाते क्यों हो, उसका कोई जवाब नहीं है ना. जब आप सेडेंटरी हो तो आप क्यों खा रहे हो इतना? भाई आप बीएमआर आपका इतना है, 200 किलो कैलोरी आप बर्न कर रहे हो दिन में, आप 1400 किलो खा के जिंदा रहो हाई कार्ब, किसने मना किया? नहीं, उनको चाहिए 2000. सुबह ब्रेकफास्ट में यहाँ देखता हूँ लोग 6 मतलब सुबह 5 बजे से ना यहाँ पे कोई साइकिल चला रहा है, कोई वॉक कर रहा है. आई एम श्योर घर जाके वो बटर फ्री टोस्ट और साथ में एक ऑरेंज जूस का ग्लास तैयार होगा. तो जो 2 घंटे की मेहनत वो सड़क और साइकिल पे करते हैं ना, वो 5 मिनट में वो सब खत्म हो जाता है. तो बीएमआर also is diet Actually, है. this is very important. As Jasmeet was you were telling that endocrine system is also playing vital role here. Obesity, like in certain condition when your glands are not working properly, in that condition, like your thyroid gland, if you are hypothyroid, then thyroid gland is playing the role of increasing your body mass. It's a complex system, so that causing the problem, and your metabolism rate will be reduced. Your body metabolism rate will be reduced because thyroid gland is a very important role. Apart from thyroid gland, there are certain other glands also. They are playing a role in reducing your body metabolism. So in that condition, if your body metabolism will be reduced, otherwise, if you are a hypothyroid patient who are hypothyroid, in that case, in patient whose thyroid gland is not working well, underacting active thyroid gland, in that condition, their body is increasing now because we see every day. So they are taking the same food as earlier. They are taking the same. I mean, exercise is also the same. Activity is the same. But due to the underactive thyroid gland, their body mass is increasing. They are obese now. So there the endocrinologist comes in the picture. Endocrine system is playing the role in reducing the BMR, body metabolism rate.
So basically there are many aspects that can define our BMR. So it's not only the one hormone, various hormones like insulin, which is a major hormone. अगर आपका जैसे अनूप सिंह ने mention किया कि हाँ, जब in low carb diet, why we promote low carb diet is because जब आप low carb diet लेते हो तो आपका insulin कम होता है and you shift from fat metabolism to glucose metabolism. तो कुछ ना कुछ कीटोन्स, अगर आपका इंसुलिन लो है तो कीटोन्स हाई होते हैं. एंड आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड वेरियस मेनी टाइम्स, आई थिंक अनूप सिंह, कि जब आप की बॉडी में कीटोन्स हैं तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत इंक्रीज हो जाता है. सो बिकॉज एनर्जी वेस्टेज, एनर्जी यहाँ तक है कि अगर आप यूज नहीं करते एनर्जी ड्रास्टिकली वेस्ट होता है उसमें, तो बीएमआर सडनली एकदम से बहुत इंक्रीज होता है. आई थिंक अनूप सिंह आप वो भी मेंशन कर सकते हैं. आप एक बार डिस्कस कर रहे थे कोल्ड थेरेपी के बारे में कि जैसे हाँ पहले अरुण जी ने भी एक एग्जांपल दिया था कि कोल्ड थेरेपी में भी आप हाँ अगर वो भी हेल्प करती है आपका बीएमआर इंक्रीज करने में. अच्छा कोल्ड, हाँ कोल्ड थेरेपी, ठंडे पानी से नहाने का, ठंडे पानी से नहाने का आपने एक बार डिस्कस किया था. नहीं मैं बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली किया था. व्हेन आई वाज इन एज अ बोर्डिंग स्कूल मसूरी में था ना, वहाँ पे हॉट वाटर सिस्टम नहीं था. ठीक है. और एक जैसे एक हॉल था बड़ा सी, 5-6 पाइप लगे हुए थे, ऊपर से शावर खोलो 10 लड़के खड़े होके नहा रहे. वी नेवर गॉट हॉट वाटर बाथ. इमेजिन कि कितना ठंडा पानी होगा वहां. हाँ मतलब देखिए अक्टूबर तक वहाँ सेशन चलता था. ठीक है. बारिश के बाद वहाँ ऐसी ठंड, ब्लेजर तो हमेशा पहने रहते थे, बट नहाना आपको ठंडे पानी से. ठीक है. बारिश होती थी, जब बारिश होती थी वहां पे देयर वाज नो स्पोर्ट्स एक्सेप्ट फुटबॉल. जो फुटबॉल खेलता है वो फुटबॉल खेले, जो नहीं खेलता है वो कितनी भी बारिश हो रही हो, कितना भी इधर उधर से पहाड़ गिर रहे हो. 12 किलोमीटर का रन था, हिली टेरेन. ठीक है. वो मतलब कॉलेज का सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी की बात है, वहाँ का एक ब्रदर वो मसूरी के उधर जाके पुलिया पे बैठ जाता था रेनकोट पहन के. 6 किलोमीटर अप 6 किलोमीटर डाउन, वहां बैठ के वो रोल कॉल लेता था. अब आप बोलो, बारिश में वहां तो बारिश में भी ठंड लगती है. तो यस यू शुड अवॉइड हॉट वाटर बाथ. पहला, आप ठंडे पानी से नहाओ ना, शुरू में आप कांपोगे. तो बेसिकली ठंडे पानी से नहाने से हमारा बीएमआर कैसे बढ़ जाता है? ये जो है ना, अभी व्हाइट फैट और ब्राउन फैट की बात हुई थी. ठीक है. इट इज दैट एक जगह था, आप ठंडे बोतल की मतलब पानी की ठंडी बोतल पकड़ लो एंड स्टार्ट सिमुलेटिंग शिवरिंग. ठीक है. आप थोड़ी देर शिवर तक भी तो ठंडा करोगे तो लगेगा. इवन दैट कन्वर्ट्स इनटू, नहीं वो यू हैव टू सिमुलेट. आपको ठंड नहीं लग रही है बट आप इमेजिन करो आपको ठंड रही है और आप कांपने लग जाओ. इवन दैट ट्रांसफॉर्म सम गेट सम ब्राउन फैट. तो ठंडे पानी से नहाने का ये एक स्टेज हो सकता है आ जाए कि आप शिवरिंग भी आपकी बंद हो जाए. दैट इज द आइडियल स्टेट. जो एक टॉडलर की होती है ना, उसको ठंड नहीं लगती, वो शिवर नहीं करता है. नया जो नवजात शिशु है या साल भर 2 साल है, he will never shiver. क्यों? He's got a very high content of brown fat. They don't have white fat actually. Very low. होता है बट इतना मतलब उनकी मेजोरिटी जो है ना वो ब्राउन फैट कंटेंट हाई है. एज वी एज, जब हमारी उम्र बढ़ती है या जब हम बड़े होते हैं, दैट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग. बेसिक हाँ, देसी भाषा में, सिंपल भाषा में समझाने का तरीका यही है. आप ठंडे पानी से नहाइए, खूब कांपिए. ठंडे पानी से नहाने से बेसिकली आपके कहने का मतलब है कि अगर आप कोल्ड थेरेपी दे रहे हो तो आप व्हाइट को ब्राउन में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज आपकी बॉडी को एकदम से इतनी हीट की जरूरत होगी कि आपकी बॉडी अंदर हीट प्रोड्यूस करेगी. अगर आपको बहुत, अगर आप ठंडे पानी से नहाओगे तो हीट कैसे प्रोड्यूस होगा? उससे रिएक्शंस होंगी बॉडी में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ेंगी. तो आपकी बॉडी, इसका मतलब ये कि जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस है हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि बीएमआर इज नथिंग बट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस. अब वो रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस बढ़ जाएगा. तो आई थिंक ये तो एक बहुत ही आसान तरीका है. डाइट भी है, डाइट है बेसल बीएमआर बढ़ाने का. एक तो डाइट है, दूसरा ठंडे पानी से आप नहाओ, गर्म पानी छोड़ दो. ठीक है. तीसरा एक्सरसाइज करो, इंक्रीज योर मसल मास. इफ यू इंक्रीज योर मसल मास तो उससे भी बीएमआर बढ़ेगा. मसल मास तो बढ़ेगा अगर आप लो कार्ब और मॉडरेट प्रोटीन और हाई फैट डाइट ले रहे हैं.
Yes, and do some exercise, light exercise, walking, stair climbing, जो भी आपको सूट करता है ना, आप करिए. अच्छा, एक पॉइंट था, व्हेन यू टॉक्ड ऑफ satiety एंड दूसरा क्या था, कैलोरी इन कैलोरी आउट पे था शायद. उसमें जो है आप देखोगे हाई कार्ब पे एक और जो नेगेटिव पॉइंट है ना, यू विल फाइंड पीपल रशिंग थ्रू देयर मील. ठीक है, आप 4 ब्रेड रख दो बटर लगा के, 5 मिनट से कम में खत्म हो जाएगी. आप वही 4 ब्रेड की कैलोरी इक्विवेलेंट ही रख दो, उसको खाने में उसको आधे घंटे लगे. तो होता क्या है, ये फैक्ट है. मतलब आप ट्राई कर लो, मैं तो कभी कभी ये चिकन लेता हूँ, मेरा आधे घंटे लग गया था उतना चिकन खाने में. 4 ब्रेड, बटर लगा के विद ऑरेंज जूस दो, विद इन 5 मिनट्स इट विल बी ऑल क्लीन्ड अप. तो इस पे मैं आता हूँ फिर वो जो वन प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, दैट chew your meal 32 times every bite. क्योंकि एनर्जी एसिमिलेशन या प्रोसेसिंग ऑफ दैट विल आल्सो डिपेंड ऑन हाउ मेनी टाइम्स यू हैव चूड. तो सिको का वहां भी एक फेलियर है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैस्टिकेशन. आपने मान लीजिए, थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, आप 100 ग्राम मूंगफली निगल जाओ, ठीक है, निकल जाओ, और वही 100 ग्राम इक्विवेलेंट का पीनट बटर खा लो, दोनों में एनर्जी बॉडी सेम एसिमिलेट करेगी? नहीं करेगी. तो सिको जो है ना, ये एक और एग्जांपल है फेलियर, वेयर एक्सटेंट ऑफ मैस्टिकेशन ऑफ योर फूड एंड फूड मिक्स इज नेवर अकाउंटेड फॉर. ये पॉइंट उस समय मैं डिस्कनेक्ट हुआ था, तो मैं उसी के लिए हाथ उठाया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I think we will continue from here on to I think in the next episode. तो बेसिकली हमारा डिस्कशन आज का ये था कि हाँ, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया. तो कैलोरीज मैटर करती हैं लेकिन बहुत बाद में, लेकिन उससे पहले मैटर करता है कि टाइप ऑफ कैलोरीज आप क्या खा रहे हो. और दूसरा जो, हाँ, हर कोई कहता है कि हाँ, ओवर ईटिंग जो है, ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी, बट आई थिंक वन शुड लुक इनटू द मैटर कि आप ओवर ईटिंग क्यों कर रहे हो, व्हाई वी आर ओवर ईटिंग. सो अरूप सिंह, मैंने डॉक्टर डेविड लडविक का एक पॉडकास्ट देखा था लास्ट ईयर, जिसमें वो मेंशन कर रहे थे प्रेगनेंसी के बारे में कि हाँ, प्रेगनेंसी के बाद कोई भी लेडी है जब प्रेग्नेंट होती है तो वो बहुत खाती है, ओवर ईटिंग. तो ओवर ईटिंग जो है कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रेगनेंसी है, इट्स नॉट द कॉज ऑफ प्रेगनेंसी. सिमिलरली जो हमारा ओवर ओबेसिटी का जो कॉज है वो ओवर ईटिंग नहीं है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग ओबीस, कि हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसीलिए हम ओवर ईट करते हैं, दैट्स व्हाई वी गेट टू ओबेसिटी. सो वी जस्ट ब्लेम कि हम ज्यादा खा रहे हैं, बट ज्यादा क्यों खा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है. जैसे प्रेगनेंसी के केस में कोई ज्यादा खा रहा है लेकिन क्यों खा रहा है, देयर इज समथिंग देयर टू, दैट्स व्हाई दे आर ओवर ईटिंग. कुछ ना कुछ देयर इज, कुछ प्रोसेस चल रहा है, कुछ ग्रोथ प्रोसेस चल रहा है. सिमिलरली आई थिंक हमें ओवर ईटिंग देखना चाहिए कि पहले हार्मोनल बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका हार्मोनल बैलेंस है तो ओवर ईटिंग नहीं होगा. उसके लिए जैसे अनूप सिंह और अरुण कुमार ने मेंशन किया कि हाँ, type of calories are important. So that's why low carb, high fat succeed in beating this obesity. So उसमें क्या होगा कि आपका सारे hormones जो भी इंसुलिन, लैप्टिन, ग्रेलिन जो मेन hormones हैं हमारे, ठीक है, वो कंट्रोल में होंगे. तो आई थिंक obesity we can fight it very easily. So would you like to say something, Anup Singh, Arun Kumar? Yeah, actually, one point I just have to clear that in case of women who are say pregnant or lactating, she needs more energy, and if she needs more energy, so she needs to store also, because so then it is a what I mean genetical that your woman with having the uh, fat deposition at buttock and thighs and all, and even abdomen. So that is the process by which our body stores energy instead of the fat. But that is for the time being, and that is for the certain goal, certain region. But if we are taking food, because if you look to our ancestors when they are the hunter gatherers, so they don't know when they will get the food.
So from that point of time, our storage of fat or fat storage of energy is started. Our gene is accordingly. So obesity or storing of fat is not unnatural, and it is not bad also unless until it reaches the point where the other metabolic problems started. So that Basically is वो the fat हमें use करना है. but we have to use. Until unless you are using it, it is never a problematic. Never a problem. And that energy should be taken, that calories should be the healthy calorie, not the calorie from the coke or fruit juice and all, or that, as Anupam say, it is from the sliced bread. So that is the, we should take the calorie, that is the healthy calorie, and that too comes from protein, fat, and very low carb. That's it. Yes, Anu. मैं एक ही चीज बोल के कंक्लूड करूंगा. ऑफन वी हियर यू नो कि अरे हमारे पेरेंट्स और हमारे बाप दादा तो यही खाते थे, है ना. एक छोटा सा एग्जांपल कोट करूंगा. आई थिंक मेरी जनरेशन, मेरी मदर की जनरेशन थी, इनफैक्ट अप टू 19 आई वुड से 1980 में पहली बार मिक्सी आई थी, ठीक है, मेरे घर में. नाउ बिफोर दैट आप किसी भी घर में चले जाओगे तो एक वो सिलबट्टा मिलता था, नॉर्थ में सिलबट्टा बोलते हैं उसको, अभी भी मिलता है. हाँ. एवरी लेडी और क्वीन ऑफ किचन, एवरी क्वीन ऑफ किचन यूज्ड टू स्पेंड एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स वो उस पे मसाला घिसने के लिए, खाने के लिए, दिन में 2 बार कम से कम. आज क्या है, प्री पैक्ड आता है, जिंजर पेस्ट, ये पेस्ट, वो पेस्ट डाला, मिक्सी में मिक्स किया. तो आरवी जो भी ये बोलता है ना हमारे बाप दादा तो ये खाते थे, मैं तो बोलता हूँ मेरी माँ के टाइम पे जो लोग एक्सरसाइज करते थे ना, आप करते हो क्या? नहीं करते हो. आप 15 मिनट उस सिलबट्टे पे ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी आप मसाला पीस के दिखा दो, आज की डेट में नहीं कर पाएगा कोई. दूसरे दिन बोलेगे मेरे शोल्डर में पेन है, यहाँ पेन है. तो एसेंशियली वही है, एनर्जी टॉक्सिसिटी. खा हम पुराने जैसे रहे, जैसे हमारे बाप दादा खाते थे, प्रिज्यूमिंग, ठीक है, लेकिन जो वो करते थे ना वो हम नहीं कर रहे. And even they never ate, you know, after each 2 hours. 2-2 घंटे बाद पहले कोई नहीं खाता था, इतना टाइम किसी के पास नहीं खाते. आप रूरल इंडिया में आज तो अभी तो ठीक है, पावर है, वहां पे सनसेट के बाद 1 घंटे के डिनर हो जाता था, उसके बाद सोने की तैयारी होती थी. बेसिकली वो फैट स्टोर करते थे, यूज करते थे, जैसे अरुण कुमार ने कहा कि वो खाते होंगे हाई कार्ब, हाई फैट, और फैट को स्टोर करते थे, फिर यूज करते थे, फिर और खाते थे. 7 बजे 8 बजे डिनर हो गया, 9 बजे बिस्तर लग गया सबका सोने के लिए, खुले मैदान में कभी कभी सोते थे. सुबह 4 बजे से चिड़िया बोलना चालू करती थी तो आप उठ जाओ. आज तो हम 12 बजे तक टीवी देखते हैं और सोने का कोई टाइम ही नहीं है. तो ये फर्क है. वी हैव लॉस्ट ऑल द फिजिकल एक्टिविटी. अब आप बोलो सीढ़ी चढ़ो, बोले घुटने में दर्द है. एंड इवन पहले इतना प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स भी अवेलेबल नहीं था जितना अब अवेलेबल है. कार्बोहाइड्रेट इफ यू आर दूसरा एग्जांपल दो प्रोसेस की. जब आप आए हो गांव में, जिसको हम बोलते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है, जब क्या मूसल में सर दे दिया तो उखली से क्या डरना, ऐसा कुछ कहावत है. सर दिया तो मुश्किल से क्या डरना. आपको पता है गांव में जो है ना, मैं देखा हूँ, नॉट दैट कि ये ग्राइंडिंग व्हीट घर के लिए आटा बनाने के लिए ना, it used to be a daily celebration of ladies. It used to be a daily celebration of ladies. ठीक है. और उसी आंगन में एक वो गड्ढा खोदते थे और मूसल लेते थे, गाना गा गा के, फिर उसके वो उतारते थे, क्या बोलते हैं, कर्नल क्या बोलते हैं, छाल बोलते हैं, जौ है, जौ डाला उसको कूटा था, फिर उसका निकाल के छाना. ये सब अभी कोई नहीं करता. अभी तो बस हाँ हमारे लोग, पुराने लोग खाते थे, तो उनसे उनका जो है ना, ये सब चीजों से उनका बीएमआर हाई चलता था. आज की डेट में बस बैठ जाओ, सोशल मीडिया पे है, खाना खाते रहो, बोलो बीएमआर डाउन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बॉडी होना चाहिए कि जब भी हम लोगों को लो कार्ब कहते हैं तो यही कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारी पुरानी सारी जनरेशंस कार्बोहाइड्रेट्स खा के ही बड़ी हुई हैं. एक और पॉइंट है जिसमें कि अभी क्या है कि हमारे पास में कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने का बहुत सारा ये. अभी अगर हमको अगर 2 किलोमीटर भी जाना है, कहीं भी कम्युनिकेट करना है, तो आई नीड अ कार और आई नीड ए 2 व्हीलर. बट पहले लोग सोचता ही नहीं था. पहले 10 किलोमीटर भी जाना तो
वॉक ऑन फुट पे ही जाना है, चल के ही जाना है, तो उसमें पहले क्या सर होता था बजाज स्कूटर एंड वेस्पा स्कूटर यूज्ड टू बी अ स्टेटस सिंबल। हाँ। ठीक है, हम सब पैदल चलते थे। मेरे को याद है जब कहीं से कुछ लेने भी जाना होता था तो कम से कम 3 किलोमीटर पैदल जाना, 3 किलोमीटर पैदल आना। बिकॉज दैट टाइम कार तो दूर की बात है, चेतक और ये जो बजाज का और वेस्पा सही है। स्टेटस सिंबल होता था। सही। अरे उसके पास वेस्पा है, ये दिक्कत है। वी हैव Yes, लॉस्ट yes. ऑल गुड हैबिट्स ऑफ ओल्ड पीरियड, और डाइट हम वही रखे हुए हैं। एंड Diet बॉडी हटा- इज डिजाइन टू कंजर्व एनर्जी, बॉडी इज डिजाइन टू स्टोर एनर्जी। आप कम खाओगे, बॉडी विल ब्रिंग डाउन योर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो स्टोर करेगी पहले। We will discuss it the next time. The food is also changed, na? What we are taking food say 50 years back, the wheat or the other grains, the chromosomes I of think the we should take this topic for the next episode next in detail. yeah, details. See why it is different, why low carb is important now. Yes. At the present time, that is the only solution for the present time, low carb. Yes. Okay, so thank you so much, Anup Singh, Arun Kumar. We will Thank you. start from here. I think next Sunday if we are all available. Yeah, Yeah. we are available. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.